जानते हैं, ना शिवालयों को मानते हैं। जो भूखे हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ भी जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में पंगा रहने दो। मेरी लाल हरे में मत बांटो, बस मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, बस मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। इन्हीं शब्दों के साथ इस खुशनुमा सुबह में मैं कविता अपने साथी जितेंद्र जी के साथ आप सभी का हमारे 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। अपने मतलब के वास्ते हमने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, अपने मतलब के वास्ते हमने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। हमने तो वतन की खैर और खुशहाली मांगी है, हमने वतन की खैर और खुशहाली मांगी है। कोई तख्त और ताज नहीं मांगा, कोई तख्त और ताज नहीं मांगा। A very good morning to all. In this pleasant morning, I, Jitendra Singh, welcome to all. And it's how blissful and charismatic morning it is, where we all gather to celebrate 73rd Republic Day. चांद के पार नई दास्तां हो जाए, हमारे ध्वज का दीवाना जहां हो जाए, जहां में हर तरफ हो बस तिरंगे की कहानी, फलक से ऊंची तिरंगे की शान हो जाए। As we know, we are gathered here to celebrate 26 January. So, India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. The most valuable and the most artistic material in the history of man are treasured up in India only. Happy Republic Day to all. Now let's move to the most important event of this day, and it is unfurling our national flag. I would like to request our honorable esteemed principal sir to unfurl our national flag. Please. Whose round of applause, please? Okay, clappings. The national anthem. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जय हिंद. And now I would request the principal sir to have a seat. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. You may take your seats now. As we all know about Republic Day, but without knowing its importance in our lives is like something missing in our hearts. So, for taking you in our history, I would like to invite Mr. Mukesh, PGT History, to enlighten on importance of Republic Day. Okay, now I would like to invite
Sama, student of class 12th, for English speech. Good morning, respected principal sir, teachers and my dear friend. I am Sama, a student of class 12 Humanities. First of all, I would like to thank you all for giving me such a great opportunity to speak on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Today, we all gather here to celebrate our 73rd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should congratulate each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15 August 1947 and the country didn't have its own constitution. Instead, India was governed by the law that are implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution, which was adopted in 26 November 1949 and officially came into effect in 26 January 1950. On the same day, Dr. Rajendra Prasad also began his term as the President of India, and the Constituent Assembly became the Parliament of India under provision of the new Constitution. When one thinks of Republic Day, the picture that flood in our mind are usually those of marching soldiers and display of Indian weaponries. Another equally important event that takes place on the Republic Day is the award presentation ceremony, where police officers, defense personnel and children are facilitated a medal for their gallantry and bravery. Post-independence, first three gallantry awards, namely Param Veer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra, were initiated by the Government of India on 26 January 1950, which were deemed to have effect from 15 August 1947. Thereafter, other three gallantry awards were Ashok Chakra Class 1, Ashok Chakra Class 2 and Ashok Chakra Class 3. Were renamed as Ashok Chakra, Kriti Chakra and Shaurya Chakra respectively in January 1967. Now let us know some of the winner of it. Major Somnath Sharma, PVC, was an officer of Indian Army and the first recipient of Param Veer Chakra, India's highest military decoration, which he awarded posthumously. Now second one. Without dance and songs, every occasion is incomplete. So how can we forget our little champs? So now I would like to invite Pareen Chaudhary from class 1 for her performance. कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सुप्रभात, मेरा नाम राधा कश्यप है।
मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक देशभक्ति गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। One individual may die, but that idea will remain after his death, incarnate itself in 1,000 lives as commemorating our freedom fighters. I would like to Debapriya for storytelling about freedom fighters. Good morning to one and all present over here. Today me Debapriya Das of class 9B from KVHP Siljagi Road is feeling very glad and blissful to be able to deliver a speech on the auspicious occasion of Republic Day. So today I would like to speak a few lines on our Grand Second Lieutenant Arun Khetarpal. Hope I would be able to fill your hearts with patriotic spirit. Second Lieutenant Arun Khetarpal was born on 14th October 1950 in Pune, Maharashtra, into a military family. He was the son of Lieutenant Colonel M.L. Khetarpal and Mrs. Maheshwari Khetarpal. As several generations of his family had served in the armed forces, the love for the army life came naturally to him. He studied from the Lawrence School, Sanavar, and did very well in academics as well as sports. He lived up to this school motto, never given, even after becoming an army officer. He joined the National Defense Academy in June 1967. Later on, he joined the Indian Military Academy and was commissioned into the 17th Pune Horse on 13 June 1971. Just 6 months later, he joined the Battle of Basantar and died during the Indo-Pakistan War of 1971. Khetarpal showed immense courage and strong will when Pakistani armour, which was superior in strength, counter-attacked at Jarpal in the Shakargarh sector in December 1971. Though he was in a different squadron, he rushed to help, moving towards the enemy, overrunning the defense with his tanks and capturing Pakistani infantry and weapons. When the commander of his troops was killed, Khetarpal continued to attack the enemy fiercely until the latter's tanks started pulling back. Khetarpal even managed to destroy one of the withdrawing tanks.
but the enemy reformed their armor and prepared for a second attack. This time they targeted the sector held by Khetarpal. The attack was severe and swift. Khetarpal was wounded but managed to hit 10 enemy tanks. He was asked to abandon his tank but realized that if he left it, the enemy would break through. He fought courageously. वंदन ए मातृभूमि तेरा, वंदन उन शहीदों का जो कुर्बान हो गए अपने देश की खातिर। इसी जज्बे के साथ तुषिता आप सबके समक्ष एक गीत लेकर प्रस्तुत है। As we all know that health is wealth, so I would like to invite our sports teacher, Mr. A.K. Yadav, to perform some yoga asanas with their students. दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ
योगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगी। इसी भावना, इसी जज्बे के साथ कक्षा 10वीं की छात्रा वर्षा दास आप सबके सामने प्रस्तुत है एक नृत्य के साथ। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा दास है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं वंदे मातरम गाने पर नृत्य करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को मेरा नृत्य पसंद आए। थैंक यू मैम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये हमारी एकता के सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। आज ही के दिन, जैसा आप जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान लागू हुआ और सही मायने में इसी दिन, आज के दिन हमारी स्वतंत्रता को पूर्णता प्राप्त हुई। लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था। फिर 26 जनवरी को क्यों लागू करना पड़ा? इसके पीछे एक रोचक दास्तान है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार इस देश के शीर्ष ध्वजवाहकों ने निश्चय किया कि इस देश को अब पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। हमने पूर्ण स्वाधीनता को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना आदर्श रखा और निश्चय किया कि 26 जनवरी को हम अपने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1930 से लेकर
1947 तक 26 जनवरी ही हमारा स्वाधीनता दिवस हुआ और हमने बहुत उमंग और उल्लास के साथ में उसको मनाया भी था। तो उसी के महत्व को देखते हुए हमने 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया और इस तिथि को अमर बनाया। प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, क्या आपको मालूम है कि आज जिस स्वतंत्र वातावरण में इस राष्ट्रीय ध्वज के तले हम अपने गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हमें ये अवसर कैसे प्राप्त हुआ? यह अवसर सुलभ नहीं था, सहज नहीं था। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे इस माँ भारती के वीर सपूतों ने क्रांति की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने रक्त से सींचा है इस संघर्ष को, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। मैं यहाँ नाम नहीं गिना सकता, बहुत फहरिस्त लंबी है। मैं आज के दिन उन महापुरुषों को, इस देश के महान विभूतियों को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये अनुपम उपहार दिया, ये हमारा संविधान बनाया। अगर मैं कहूँ कि वो आम आदमी ना होकर देव पुरुष थे, महामानव थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इतना सर्वोत्तम, विश्व का सबसे सर्वोत्तम संविधान बनाया है, वो परिस्थितियाँ भयावह थी, बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। देश के टुकड़े होने का असहनीय दर्द था, पीड़ा थी, दंगों के विभत्स दृश्य थे, विचलित कर देने वाले थे। रियासतें देश से अलग होने के लिए आतुर थी, देश कई और टुकड़ों में बंटने के कगार पर था। उन परिस्थितियों में हमें इस देश को शासन व्यवस्था देना, इन परिस्थितियों को संभालना और संविधान भी बनाना, और उस देश के लिए बनाना जिसके हर राज्य का एक अपना अलग है ना आइडेंटिटी है, अपना अलग कल्चर है, अपनी भाषा है। ये देश विश्व की सबसे अधिक विविधताओं का देश है। इतने धर्म, संप्रदाय, जाति, भौगोलिक विविधता, उसके लिए हमें एक संविधान बनाना, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। हमें बहुत शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इस संविधान से हमें किसी को कोई शिकायत नहीं, कभी नहीं। और उन महान विभूतियों ने हर एक आर्टिकल पे, हर एक शब्द पे गहन चिंतन किया, बहुत गहन उस पर डिस्कशन हुआ, हर वर्ग के हित का इसमें पूरा ध्यान रखा गया, तब जाके संविधान बना। ये संविधान इस देश के जनमानस की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। अगर हम संक्षेप में संविधान के बारे में समझना चाहें तो हमें प्रस्तावना देखनी चाहिए, जो इस संविधान की आधारशिला है, जो इस संविधान का मार्गदर्शक है, जो मूल्य हैं भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, और वो मूल्य जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता, ये समानता, ये न्याय, ये मूल्य हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये मूल्य हमने आज़ादी के संघर्ष की आग में तरासे हैं, तब कहीं जाके हमें ये आज़ादी मिली है, ये दिन नसीब हुआ है, और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि हमें अपने अतीत का भान होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तब जाके हमें मालूम चलेगा महत्व इस दिन का, हमें मालूम चलेगा क्या मूल्य है हमारे संविधान का, क्या मूल्य है हमारे अधिकारों का। और केवल अधिकार नहीं, अधिकार और कर्तव्य फंडामेंटल्स हैं हमारे संविधान के, और कर्तव्य अधिकारों से कहीं ज़्यादा व्यापक है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्तव्य की अनुपालना से ही अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। स्वतंत्रता संघर्ष केवल एक राजनीतिक संघर्ष मात्र नहीं था, वो एक व्यापक समाज सुधार आंदोलन था, और हमारे राष्ट्रीय चेतना की एक
पुनर्जागरण था। तो आज के इस पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि जिस आज़ादी का स्वप्न देखकर वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया और जिस आदर्श भारत की परिकल्पना कर हमारे महापुरुषों ने हमें ये संविधान दिया, उसको साकार करने में हम अपना पुरजोर प्रयत्न करें, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्यारे बच्चों, साथियों, ये देश हमसे है, ये संविधान भी हमसे ही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रस्तावना शुरू ही यहीं से होती है। तो एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने अतीत को और अच्छे से समझें, हम जानें, अपने संविधान के बारे में और जानें। और मैं ज़्यादा तथ्यात्मक चर्चा नहीं करते हुए अगर इतिहास पे और संविधान पे बात करें तो बहुत व्यापक चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम ये आज सीख लें कि हमें इस देश की एकता, अखंडता और हमारे भारतीयता को और अधिक मजबूत करना है, हमें उसको और अधिक जीवंत करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका हार्दिक आभार और एक बार पुनः आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. You have given your words here. Okay, your valuable and precious words are very important for us that you told us. And okay, now I'm going to, or I would like to share some important aspects, information about our tricolor. Our national flag was adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly held on the 22nd July 1947. A few days before India's independence, it served as the national flag of the Dominion of India between 15 August 1947 and 26 Jan 1950, and that of the Republic of India thereafter. In the national flag of India, the top band is of the saffron color, indicating the strength and the courage of the country. And the white middle band indicates peace, truth with Dham Chakra. And the last band is green in color, shows the fertility, growth, and the auspiciousness of the land. And the Dharam Chakra depicted the wheel of the law. And our dear students have prepared a beautiful cultural program. So I would like to request you all to enjoy the programs, okay, through virtual mode. You are further requested to sit in senior science lab. Thank you. सुप्रभात सभी को। सबसे पहले विद्यालय परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हम सभी प्राचार्य महोदय और पूरे स्टाफ का आभारी हैं कि जो अभी सर ने गणतंत्र दिवस के बारे में हमें बताया। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति खास तौर पे अभी जो सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैल रही हैं कि सोशल मीडिया जो है बहुत सारे उस पर अफवाहें फैल रही हैं। तो हम सब ऐसे अध्यापक अपने बच्चों को इसके बारे में थोड़ा अवेयर करें। और मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसा कि सर मैडम ने कहा कि मिठाई का इंतज़ार कर रही है आप सभी का, तो आप सब मिठाई का आनंद लीजिए। धन्यवाद। Thank you, sir. Okay. बिना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के स्पीच के हर कार्यक्रम अधूरा है, तो हम लोग अपने प्रिंसिपल सर को भूल नहीं सकते। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ऑन द स्टेज, प्लीज सर। अवसर पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी,
प्यारे बच्चों, वह कार्यक्रम का ऑनलाइन माध्यम से आनंद उठाने वाले, देखने वाले मेरे सभी छात्रगण, अभिभावक व अन्य साथी, आज इस महापर्व की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या औचित्य है, इसकी क्या महत्वता है, इस पे प्रकाश डाला। वर्तमान स्थितियों में जब कई तरीके की समस्याओं, विशेषतः कोविड-19 जैसी स्थितियों से पूरा देश जूझ रहा है, हम ऑनलाइन माध्यम में शिफ्ट हुए हैं। परिस्थितियां विकट हैं, परंतु देश अपने नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और इन स्थितियों से निकलने में सक्षम भी हो रहा है। आज इस गणतंत्र दिवस पर, जो कि 73वां गणतंत्र दिवस है, इसी वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में कंप्लीट करने पर बना रहे हैं। कुछ विचार देश लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर सटीक प्रतीत होते हैं। देश को विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम अपनी पहचान को ना खो दें। विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हमेशा बने रहें। हर क्षेत्र में भारतीय अपनी पहचान बनाएं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे। गणतंत्र गणों का तंत्र है, जैसा सर ने कहा, विविधता समाहित है हम में और को एग्जिस्टेंस की भावना हमेशा हमारे मन में विद्यमान रहे। सेल्फ एग्जिस्टेंस ना होते हुए को एग्जिस्टेंस को हम अपने मन में रखें। हर प्रांत, हर क्षेत्र की संस्कृति, हर समाज, हर समुदाय का सम्मान और समान दर्जा देश में संविधान से प्राप्त हुआ है, इसे हमेशा बनाए रखना है। पर्यावरण का संरक्षण करना है। मौसम में होने वाले बदलाव, स्थितियां, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब सिंगल यूज प्लास्टिक्स का कम से कम उपयोग करना, ये बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें आज के दिन ही नहीं, परंतु सभी दिन अपने उन सभी वीर सपूतों का, उन सभी गणों का सम्मान करना है, उन्हें अपनी स्मृति में बनाए रखना है। उन अनसंग हीरोज का, जिन्होंने कि भारत के स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनकी पहचान भले ही ना हो, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस के बिना ये दिन देख पाना संभव नहीं था। वो सब हमारे पूर्वज हैं। आप, मैं, यहाँ विद्यमान सभी हमारे पूर्वज, हमारे परदादा आदि किसी न किसी रूप में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और अन्य गतिविधियों में भाग लिया है। ऐसे क्षेत्रीय नायकों की पहचान कर अपने समुदाय, अपने क्षेत्र में उसकी जागरूकता लानी है। और इसकी पीछे का मकसद यही है कि हम उन महानुभावों के जीवन से ये चीज़ सीख सकें, ये बात ग्रहण कर सकें कि चाहे हमारी पहचान हो ना हो, परंतु हमारा योगदान होना चाहिए।
मेरे अनसंग हीरोज हमारे शिक्षक साथी भी हैं। आप सभी उन सब विद्यार्थियों के हीरोज हैं जो कि जीवन में अपना नाम करने वाले हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ परिस्थितियों के साथ ढलने की क्षमता भी हमें आनी चाहिए। अभी कोविड-19 की गाइडलाइंस को हम सब फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा परम कर्तव्य है कि देश के द्वारा दिए गए निर्देशों का हम पालन करें और उसी अनुरूप जो है अनुपालन भी करें। आज के दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की परेड जो कि राजपथ के ऊपर की जा रही है। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध रहेगा कि इस कार्यक्रम के बाद वो इस परेड का आनंद लें, जो कि वर्चुअल मोड के अंदर भी अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने जीवन में ये धारण करें कि जो संविधान से हमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है, उन्हें हम हमेशा ध्यान रखें। ना सिर्फ उन कर्तव्यों के बारे में उन अधिकारों के बारे में जागरूक रहें, परंतु अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को उन अधिकारों की जागरूकता भी प्रदान करें। साथ ही साथ अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते रहें। तो मेरे यही संदेश सभी छात्रों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने लिए है। और पुनः आज इस 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।